Hi students. So till now we have finished the animal tissue part, and let me tell you that we are studying the structural and organization in animals, where we have already finished the animal tissue part, where we have studied about the different types of tissues, their position, location, pattern, right? Now in today's lecture we are going to start with the new part, that is the type study. We call in zoology it as a type study. So in the type study we are going to study about cockroaches, because cockroaches are there in our syllabus. Previously earthworm and frog were also there, but right now we only have to study the we only need to study the cockroach. That's all, right? So before I start and start to discuss about the cockroach, let's have a overview of the course, what we're going to study. See, in this part we're going to study the morphology of the cockroach and also anatomy, and then we'll study the different parts of the cockroaches, and also we'll study the different system like digestive, respiratory, circulatory, the nervous system, and also finally we'll study at the end reproductive system as well. So there are many different things, there are many different parts are there to discuss. So before I start with the morphology of the cockroach, I need to share some interesting facts about cockroaches with all of you. You will be surprised to know that these cockroaches are one of the longest living animal on planet Earth. अगर मैं आपको बताऊंगा कॉकरोचेस, डायनासोरस, आपने पढ़ा होगा डायनासोरस के बारे में, आपने शायद जुरासिक पार्क के सारे पार्ट्स भी देखे होंगे, आई बिलीव, ओके, बिकॉज किड्स दे लाइक दिस टाइप ऑफ मूवीज. सो यू नो ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट द डायनासोरस. सो डायनासोरस से पहले भी, बिफोर डायनासोरस से भी 120 मिलियन ईयर्स पहले कॉकरोच, उसके पहले से 360 मिलियन ईयर्स बैक, देन तब से लेके कॉकरोचेस इस धरती पे है. और एक बात बताना चाहता हूं आपको कि इनका साइज अभी आप हमेशा आपके घर में कभी ना कभी इन योर लाइफ आई थिंक यू हैव एनकाउंटर्ड विद दिस एनिमल, आपने कभी ना कभी इसको देखा होगा. तो आपको कुछ लोगों को शायद इससे डर भी लगता होगा. Some people feel this animal as creepy, but let me tell you the facts about this animal. डायनासोरस से पहले भी ये धरती पे थे. हम इंसान, ह्यूमन बीइंग इवॉल्व होने से पहले भी ये धरती पे थे. और मैं आपको बता दूं फ्यूचर में भी शायद ये रह जाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे. मे बी वी मे एक्सटिंक्ट, देयर इज अ चांस दैट वी मे एक्सटिंक्ट, बट प्रोबेबिलिटी दैट दिस एनिमल विल नॉट एक्सटिंक्ट. क्यों ऐसा है? अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर ये एनिमल में ऐसा खास क्या है कि इतने मतलब सालों से, मतलब मिलियंस ऑफ इयर्स दे सर्वाइविंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. दैट मींस दे हैव अ वेरी गुड अडैप्टेबिलिटी, सुपर अडैप्टेबिलिटी फीचर्स, राइट? वो किसी भी एनवायरमेंट में, आप कॉकरोचेस दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ आपको कॉकरोचेस मिलेंगे. आप अफ्रीका चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, आप लंदन चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, यू चूज एनी रैंडमली चूज एनी कंट्री इन दिस वर्ल्ड and go and visit. Not only country, you go and visit any of the forest land in this world. कहीं भी चले जाओ जहां पे फॉरेस्ट है, वहां पे भी आपको ये कॉकरोचेस मिलेंगे. So these are the most predominant animal in this animal kingdom. ठीक है, one of the most, and they are living fossils also. We consider them as living fossils. Living fossil क्या, हमने पहले भी बात किया है, you know it's very well, right? So अब ये इनका जो adaptability features क्या है? The main thing is that they have a very outermost structure of their body is very strong. They are having exoskeleton and they can survive in warmer climate and also in the colder climate. So उनको क्या है ना, गर्मी जहां पे है वहां पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, जहां पे गर्मी नहीं है वहां पे भी सर्वाइव कर सकते हैं. ये तो पहला चीज है. दूसरा क्या है उनका एडेप्टेबिलिटी फीचर्स? दे कैन ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. दे आर ओमनिवोरस. ठीक है, तो सर्वाइबिलिटी के लिए, जैसे कुछ लोगों का होगा कि मैं वेज खाता हूं, मैं और कुछ नहीं खा सकता, या कुछ लोगों का होगा मैं सिर्फ नॉनवेज खाता हूं, वेज मुझे पसंद नहीं है,
तो ऐसे लोग जब तक वेज मिलेगा तो वो सरवाइव कर सकते हैं, जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज वाले हैं, जब तक नॉन वेज मिलेगा वो सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन ये कॉकरोच क्या है? कॉकरोच कैन ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हेनेवर द टाइम रिक्वायर्स। और हमेशा याद रखना आप लोग एज ए बायो स्टूडेंट, आपको ये समझना होगा कि इवोल्यूशन ही, बिकॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स विल सर्वाइव हु कैन अडॉप्ट विद द एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं कह सकते आप कि नहीं अभी तो वेजिटेबल्स खत्म हो गए, मैं नहीं खा सकता, मुझे तो मैं मर जाऊं, मतलब आई विल सरेंडर टू डेथ। So that is not possible. That is actually not right. If you are to survive, you have to be be omnivorous like this animal. तो ये बहुत अच्छा क्लासिक एग्जांपल है हमारे सामने कि एनिमल्स हुआ, आप देखना जो एनिमल्स ओमनीवोरस हैं उनका सर्वाइबिलिटी ज्यादा होता है। जैसा आप देखो इंसान, ह्यूमन बीइंग, ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन फाइंड द ह्यूमन बीइंग, राइट? क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी ओमनीवोरस है, इंसान सब कुछ खा सकते हैं, इसीलिए हम ज्यादा हर जगह पे सर्वाइव कर, हम वी कैन सर्वाइव इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड द सेकंड थिंग वी हैव टू थिंक, फर्स्ट इज वी आर वेरी इंटेलिजेंट कंपेयर्ड टू अदर एनिमल्स, सो वी कैन अडॉप्ट, maybe we are not adapting with the environment but we can design certain things, we can make certain things to survive in that particular environment. Example, जैसे स्वेटर पहन लेंगे हम तो हम ठंडे रीजन में जाके भी रह सकते हैं, तो स्वेटर हमने बना लिया, ठीक है? तो so there are differences, ठीक है? So you need to be actually the cockroaches are they are actually basic, they are having especially two special characters. पहला है वो ओमनीवोरस है, दूसरा है वो किसी भी एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है? एंड देयर एक्सोस जो उनका एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिनस होता है, ठीक है? और वो क्या कर सकते हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं, इसीलिए वो लाखों सालों से, सदियों से वो धरती पे है, डायनासोर से पहले भी थे, अभी भी हैं, ठीक है? सो दैट इज द रीजन। और एक फैक्ट मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, आप कॉकरोच का जो साइज आप देखते हो, इसका साइज डायनासोरस के समय में या उसके पहले इसका साइज डबल हुआ करता था, 2 गुना ज्यादा हुआ करता था, ठीक है? तो साइज अभी उसका घट गया है, छोटा हो गया है वो, ठीक है? पहले इसका साइज और बड़ा हुआ करता था कॉकरोचेस का। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच। देखो मोस्ट कॉमन जो स्पीसीज के बारे में हम बात करते हैं, जो है अमेरिकन वैरायटी, इसको बोलते हैं पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, वो हमारे इंडिया में नहीं मिलता। गलती से लोग हम बोलते रहते हैं कॉकरोचेस का साइंटिफिक नेम क्या है, कॉकरोचेस का साइंटिफिक नेम क्या है? Yeah, that is the name, scientific name of the cockroach, that is Periplanta americana. But that is an American species, American variety. अमेरिका में हमें वो मिलता है। हमारे इंडिया में क्या मिलता है? हमारे इंडिया में जो कॉकरोच मिलता है उसका नाम है ब्लटा ओरिएंटालिस। देखो आप यहाँ देख सकते हो ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी ब्लटा ओरिएंटालिस। दिस इज द स्पीसीज और दिस इज द वैरायटी और we can get in India. This is, आप अपने घर में जो देखते हो ना, वो पेरीप्लानेटा अमेरिकाना नहीं है, वो है ब्लैटा ओरिएंटालिस। ये ध्यान दीजिए आप, इंडिया में हमें जो मिलता है कॉकरोच जो दिखता है उसे बोलते हैं हम ब्लैटा ओरिएंटालिस, और अमेरिका में जो है मिलता है उसको बोलते हैं पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, ठीक है? नाम से पता चल रहा होगा। Now next, the cockroaches are available in most of the habitat. कॉकरोचेस आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। आप जंगल पे चले जाओ, आप सिटीज में चले जाओ, आप विलेज में चले जाओ, आप फार्मलैंड विजिट करो, कहीं भी आप चले जाओ, ठीक है? ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको कॉकरोचेस मिलेंगे हमेशा, हर जगह, ठीक है? बिकॉज they can survive in most of the habitat because of some reasons, like they are omnivorous and have chitinous exoskeleton. They survive in the warmer and colder condition both, ठीक है? देखिए मैं आप सबको as a bio student, because you all are bio student and you all are science students, you need to think everything scientifically. आप एक condition imagine करो। Now right now we have lot of choices. We have as a human being we have evolved, we have developed the techniques for agriculture. Now later on we have started the industries. We have designed and we have produced different types of products. Right now there are 1,000 different types of items and products are available in the market. So we have a choice. Now let us just think for a while and just imagine for a while that we don't have all the different types of choices and we all are living in a condition or a situation where we don't have anything like this choices. Maybe we are living in a jungle. Imagine that
I took some of you and drop in the Amazon forest. Now how you are going to survive there, right? So that is a natural environment. So there you don't have any choice. Whatever you will get, you have to you have to survive on that basis. Like the people, the indigenous people, the tribal people, those who are living in the jungles, in the forest, they survive whatever they get in the jungle. They don't demand. They don't have choices like us. Okay, so whatever they are getting in that particular area, in that habitat, they have to eat it, they have to take it, and they have to survive on that basis, right? So that is why, and the cockroach, they have the the capacity to adapt in most of the environment, most of the habitat in this world. So that's why they are that's why they are surviving everywhere. They are the one of the most dominant animal in the animal kingdom, right? So उनके दो मेन फीचर्स हैं जिसके लिए इतना अच्छे से सर्वाइव करते हैं. फर्स्ट है उनका they can survive in warmer and colder condition and they are omnivorous. और वो कैसे कर लेते हैं, वो किसी भी वेदर में सर्वाइव कैसे करते हैं, because they have a thick chitinous exoskeleton. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में. चलिए नेक्स्ट मूव ऑन. Now we'll talk about the body of the cockroach. The body of the cockroach can be divided into head, thorax and abdomen. बेसिकली जो कॉकरोच का बॉडी है उसको हम तीन पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. अब ये जो हेड है थोरैक्स के साथ it is connected with a neck. There is a neck which is connecting the head and the thorax. But if you see it from the dorsal side or if you have a dorsal view, so हमें ये जो neck का connection है हेड के साथ थोरैक्स का, वो हमें properly नहीं दिखता है. But there is a neck, there is a thorax. And after the thorax, behind the thorax, the rest of the body can be divided and we can call it as abdomen part, right? Now, head is made up of 6 parts. Head part जो होता है basically 6 parts से बने होते हैं. हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ. जो head होता है, इसके जो 6 parts होते हैं ना, they are basically fused. तो हमें normally अगर हम देखेंगे उसको, तो हम पता नहीं कर सकते इसके 6 part है जो adult cockroach होते हैं उनमें. लेकिन जो बहुत ही यंग कॉकरोच होते हैं, जैसे हम निम्फ कहते हैं, जो यंग कॉकरोचेस होते हैं, उसमें हमें ये जो 6 डिफरेंट पार्ट्स तो नहीं दिखते क्लियरली, बट वी कैन सी अ थिन लाइन वेयर ऑल द एक्सोस्केलेटन पीसेस आर एक्चुअली जॉइंड एंड फ्यूज्ड टुगेदर, राइट? तो हमें सिर्फ और सिर्फ यंग स्टेज में दिखता है, ये जो एडल्ट स्टेज में हमें वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है. ठीक है. Now the head part is made of 6 parts. Then they have a biting and chewing type of mouth. इनका जो माउथ होता है biting and chewing type होता है, मतलब काटना और चू करना दोनों ही इनमें वो कर सकते हैं. And mouth is actually hypognathous. Mouth is downwardly directed. थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा आपको, यहाँ पे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा. मान लो कि ये थिन लाइन जो है ये बॉडी है कॉकरोच का, सपोज, तो उनका जो माउथ होगा ना वो ऐसे परपेंडिकुलर होता है. ठीक है. अगर बॉडी ये स्ट्रेट लाइन जो बॉडी रिप्रेजेंट करेगा, तो जो उनका हेड पार्ट है वो ऐसा होता है. ठीक है, ऐसा परपेंडिकुलरली अरेंज होता है. और उनका जो माउथ होता है वो नीचे की तरफ होता है, ये. ठीक है, इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. उसी को हम बोलते हैं हाइपोनाथस. इसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोनाथस. मतलब अगर कॉकरोचेस का बॉडी हम साइड व्यू से ऐसे देखेंगे, देन दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द बॉडी एंड दिस वन the perpendicular, this is the head ऐसे perpendicularly attach होता है बॉडी के साथ. और माउथ जो होता है, जो माउथ पार्ट होता है वो डाउनवर्डली डायरेक्टेड होता है. क्या होता है, डाउनवर्डली डायरेक्टेड होता है. ठीक है. and that position is known as, because the mouth is downwardly directed, that is technically we call it as hyponathous. ठीक है. इसका मतलब क्या है, mouth is downwardly directed. I hope it is clear. Next. Now the thorax is, अब देखो हमने हेड के बारे में पढ़ा. हेड में क्या होता है, उसमें 6 पार्ट होते हैं. 6 पार्ट जो एक्सोस्केलेटन है वो फ्यूज होके बनता है. और माउथ पार्ट के बारे में हमने पढ़ा कि माउथ जो है वो हाइपोनाथस है, मतलब डाउनवर्डली डायरेक्टेड है. थोरैक्स क्या होगा, थोरैक्स में भी 3 पार्ट है. थोरैक्स का 3 पार्ट है. पहला पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, बाकी के 2 पार्ट थोड़े छोटे होते हैं. पहला वाला जो पार्ट होता है समवट ट्रायंगुलर इन शेप, little bit of triangular, not complete, it is somewhat triangular in shape. उसको हम बोलते हैं प्रोथोरैक्स. पहला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं प्रोथोरैक्स.
जो बीच का पार्ट होता है थोरैक्स का उसको हम बोलते हैं, जो सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं मीजोथोरैक्स, और जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेटाथोरैक्स। ठीक है, सो एब्डोमेन इज, उसके बाद क्या होगा, मेटाथोरैक्स के बाद आपने क्या बात किया था, थोरैक्स के बाद क्या पार्ट है, उसके बाद है एब्डोमेन, और एब्डोमेन में हमें कितने सेगमेंट्स मिलेंगे, we can see there are 10 segments in the abdomen. Abdomen में कितने segments होते हैं, there are 10 segments, ठीक है। और इनका जो मैंने पहले ही बात किया था, इनका जो पूरा बॉडी है it is covered with the exoskeleton pieces। अब इनका जो पूरा बॉडी है ये अलग अलग एक्सोस्केलेटन पीसेस से बनता है। ऊपर वाला जो पार्ट है, डॉर्सल वाला पार्ट है, वो बनता है आपके जो एक्सोस्केलेटन पीस से बनता है उसे हम कहते हैं टर्गम। नीचे वाला जो बॉडी का पार्ट है जिस जो एक्सोस्केलेटन पीस से बनता है उसे बोलते हैं स्टर्नम, और दोनों साइड में लैटरली जो एक्सोस्केलेटन पीस रहता है उसे हम बोलते हैं प्लूरा। ठीक है, लैटरली जो रहता है उसे प्लूरा। अभी जो सारे एक्सोस्केलेटन पीसेस है ये सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन, एंड दैट द नेम ऑफ दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंथ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। फिर से एक बार सुन लीजिए, ये जो एक्सोस्केलेटन होता है जो कि पूरे कॉकरोच के बॉडी को कवर करता है, ये बेसिकली पीसेस में होता है। ऊपर वाला डॉर्सल साइड में जो पीस होता है, जो पीस होता है उसे हम कहते हैं टर्गम, TERGUM, टर्गम। नीचे जो वेंट्रल साइड में जो पीस होता है उसे बोलते हैं स्टर्नम, और स्टर्ना भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही है, स्टर्ना स्टर्नम दोनों बोथ आर राइट वर्ड्स। एंड लैटरली भी उनमें प्लेट्स होते हैं उसे बोलते हैं प्लूरा। अब ये जो सारे प्लेट्स होते हैं दे आर इंटरकनेक्टेड प्रॉपर्ली, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर नाइसली प्रॉपर्ली with a special type of membrane, and that the name of the membrane is anthropodial membrane. क्या नाम है उसका, anthropodial membrane. You can see the diagram and you can draw it as well. So you can see here, this is the anthropodial membrane I have mentioned here, right? So the chitinous exoskeleton, it has pieces. अब ये जो chitinous exoskeleton जो pieces हमने भी डिस्कस किया, जो टर्गम है, प्लूरा है, स्टर्नम है, इसे हम ऑल टुगेदर क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्केलेट्स। क्या कहते हैं, स्क्लेरेट्स। सॉरी, माय मिस्टेक, आई वाज नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली। स्क्लेरेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्क्लेरेट्स। ठीक है, ये जो टर्गम है, स्टर्नम है, प्लूरा, ये क्या है, these are actually the endoskeleton chitinous exoskeleton pieces which are commonly known as sclerates। क्या कहते हैं इसे, स्क्लेरेट्स कहते हैं। डॉर्सल पीस को कहते हैं टर्गम, वेंट्रल पीस को कहते हैं टर्नम, लैटरल पीसेस को कहते हैं हम प्लूरल। ठीक है, sorry, plura. Now, depending upon the size, the exoskeleton plates can be named. तो ये जो सारा जो हमने भी देखा, टर्गम, प्लूरा, स्टर्नम, साइज और लोकेशन के हिसाब से हमने इनका अलग अलग नामकरण किया है। ठीक है, I hope it is clear till now. Now, the same thing what I have discussed. The membrane, there are membranes which hold these pieces. Which pieces? These sclerates, these pieces together, and that membrane is known as anthropodial membrane. ठीक है, now in the dorsal view, अगर हम जो कॉकरोच है उसको हम अगर डॉर्सली देखेंगे, डॉर्सल व्यू में देखेंगे, so we can see the head is visible, we can see the cockroach can be visible on the head. There are two long antennae. तो हमें हेड पार्ट जो दिखेगा उसमें क्या मिलेगा, हमें दो एंटीना दिखेगा। ठीक है, अब जो एंटीना है, what is the function of those antenna? The function of the antenna is they are sensory structures. ठीक है, those antenna अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे, so we can see there is the head and the head part is having two antenna. So this is one antenna, this is another antenna. ठीक है, थोड़ा और लंबा होता है, I have just drawn it because of the less space, so थोड़ा आप लंबा बना सकते हैं। ठीक है, तो हेड पार्ट में क्या मिलेगा, एंटीना। ठीक है, और क्या मिलेगा, यू कैन सी दिस कंपाउंड आईज। नाउ द हेड इज कनेक्टेड विद द thorax with the help of neck, but the dorsal view the neck is not visible। मैंने पहले ही बताया कि अगर हम ऊपर से देखेंगे, डॉर्सल व्यू देखेंगे कॉकरोचेस का, तो हेड और जो thorax पार्ट है they are interconnected, they are connected with the help of neck, but हमें वो visible, हम उसको देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमें वो प्रॉपर्ली पता नहीं चलता, क्योंकि वो ढका होता है ऊपर वाला प्रोथेरॉक्स, thorax वाला पार्ट उससे।
ठीक है। सो नेक्स्ट, आफ्टर द हेड में हमने क्या देखा, कंपाउंड आईज है और 2 एंटीना है। उसके बाद जो हेड है वो अब थोरैक्स के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ नेक, एंड देयर इज अ in the just after the head there is a triangular piece which cover the head part as well। पहले भी मैंने बात किया था, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोथोरैक्स बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसे, प्रोथोरैक्स। So you can see the diagram properly now, it will be more clear to you if you see the diagram। So पहला जो सेगमेंट है तो हम पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद then after that I will go to the slides where the points are actually there, and I will just discuss the point once again later on। You can pause and you can write। Now first of all let us discuss the structure। तो हेड पार्ट है, हेड पार्ट के साथ क्या है, कनेक्टेड है थोरैक्स के साथ। थोरैक्स मतलब पहला जो ट्रायंगुलर शेप का थोड़ा बड़ा वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्रोथोरैक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसे बोलते हैं मेसोथोरैक्स। उसके बाद जो पार्ट है उसे बोलते हैं मेटाथोरैक्स, ठीक है। और ये जो ट्रायंगुलर शेप का जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं, ये जो है थोड़ा सा फर्स्ट जो आपका थोरैक्स का पार्ट है, पीस है, सेगमेंट उसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा ट्रायंगल शेप का होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इफ यू सी वी कैन फाइंड दैट देयर आर सेगमेंट्स, ठीक है। एब्डोमेन पार्ट है, जस्ट बिहाइंड द थोरैक्स वी हैव the abdomen part which are having 10 segments। You can count it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं ये थोड़ा सा छोटा बनाना, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके you just make it little smaller, ठीक है। then as a result it would be adjusted। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, आप ऐसे बनाना कि ये सेगमेंट जब अंत में 10th सेगमेंट हो थोड़ा ये छोटा हो जाए, ठीक है। so you please distribute the segment in such a way। So that was little bit mistake I have done, so please be careful। Now so when you draw it you please count the segments। 10 ही segment होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। Now at the end part, that is at the 10th segment, क्या होता है at the 10th segment, the cockroach it is having a special type of what we can say the 10th segment basically it is having a special structure or extended structure, what we can say। So behind the metathorax there are 10 segmented abdomen is present, and in the cockroaches the 10th abdominal segment, जो 10th abdominal segment होगा, okay, there are there are 2 extended structure can be seen and which are segmented structure। जो 10th वाला segment होगा उसमें से आपको देखो 2 extended structure आपको दिख रहे होंगे। You can see the both extended structure, this is one and this is one, and these structures are also again segmented। 10 सेगमेंट से जो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर हमें मिलेगा दो, वो भी फिर से क्या है, सेगमेंटेड है। उसका नाम क्या है, एनल सरसाई। क्या बोलते हैं उसे, एनल सरसाई, ठीक है। और ये जो एनल सरसाई जो स्ट्रक्चर है ये हमें मेल और फीमेल दोनों में ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल में है फीमेल में नहीं है, या तो फीमेल में है मेल में नहीं है, ये दोनों ही हमें मिलेगा, मेल और फीमेल दोनों के केस में, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनके जो कॉकरोचेस के जो थोरैक्स पार्ट है इसमें इनका बॉडी के 2 इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर वो मिलता है। पहला वॉकिंग लेग जो वो भी थोरैक्स में होता है, और विंग्स जो है वो भी थोरैक्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में विंग्स बनाया है, दूसरे साइड में लेग्स बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि अगर मैं दोनों तरफ में दोनों बना दूंगा तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने एक साइड में, लेफ्ट साइड में मैंने विंग्स बना दिया है, राइट साइड में मैंने लेग्स बना दिए फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विंग सिर्फ एक तरफ होता है, दोनों तरफ ही विंग्स होता है, दोनों तरफ ही लेग्स होते हैं, ठीक है। सो ये दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट, फाइन। सो ऐसा मत समझना कॉकरोचेस के एक साइड में लेग्स होता है दूसरे साइड में नहीं होता, या एक साइड में विंग्स होता है दूसरे साइड में नहीं होता, ऐसा नहीं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। Now the walking legs are present in each thoracic segments। तो जितने भी हर thoracic segment में walking legs होते हैं। तो आप देख सकते हो पहला वाला जो thoracic segment है प्रोथोरैक्स, वहां पे भी legs है, उसको बोलते हैं प्रोथोरैसिक legs। उसके बाद मेसोथोरैक्स में भी legs है, उसे बोलते हैं मेसोथोरैसिक legs। उसके बाद है मेटाथोरैसिक leg जो कि मेटाथोरैक्स में होता है। तो हर एक thorax region में हमें जो segment है उसमें legs हमें मिलेगा, ठीक है। इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, ठीक है। Now the next important thing is this, the wings are अब ये देखो हमें लेग्स तो पता चल गया, लेग्स आपके प्रोथोरैक्स में भी होता है, मेसोथोरैक्स में भी होता है, मेटाथोरैक्स में भी होता है, लेकिन विंग्स ऐसा नहीं। विंग्स कहां पे होगा, विंग्स विल बी प्रेजेंट
in the mesothorax and metathorax thoracic region, that is in the junction. मतलब प्रोथोरैक्स और मीजोथोरैक्स का जो जंक्शन है वहां से विंग्स निकलेगा, एक वहां से विंग्स रहेगा, और दूसरा है मीजो और मेटा के जंक्शन से भी विंग्स निकलेगा, ऐसा है, ठीक है। तो प्रोथोरैक्स में प्रॉपर्ली कोई विंग्स नहीं होता, बट जंक्शन जो होता है वहां से विंग्स होता है। प्रो और मीजो के जंक्शन से विंग्स होगा, निकलेगा, और मीजो और मेटा के जंक्शन से भी विंग निकलेगा, ठीक है, विंग रहता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। Now the wing arise from the mesothoracic junction is a large wing, ठीक है। अब mesothoracic पहला वाला देखो मैंने जो ब्लैक कलर से बनाया है, that is a wing which is coming out or which is originating from the mesothorax region, ठीक है, और what we can say the pro and meso junction region. That wing is actually it is a large wing, ये बहुत बड़ा होता है, and it actually covers the body, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं इसका काम क्या है ना। ये जो विंग है ना, ये नॉर्मली ये हमने यहाँ पे क्या किया ना, I have drawn and it is also in the book as well, you can check. So this is the wing in an open stage, हमने विंग को खोल दिया है। एक्चुअल में ये जो विंग है ये पूरे कॉकरोच के बॉडी में ऐसे ढका रहता है, ये कॉकरोच के बॉडी को ढकते हैं। हाफ ऑफ द कॉकरोच बॉडी विल बी कवर्ड बाय दिस विंग, ठीक है, दिस फर्स्ट वन, यहाँ पे ऐसे पूरा इसको कवर करता है हाफ, ठीक है। द नेक्स्ट हाफ इज कवर्ड बाय द नेक्स्ट विंग, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, पहला जो विंग्स है ये तो साइज में पहला तो ये बड़ा होता है, और इसका काम क्या होता है, टू कवर द बॉडी ऑफ द कॉकरोच, हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ द कॉकरोच ऐसे कवर करके रखता है। तो हमने यहाँ पे खोल दिया इसको, और ये क्या होता है ना, ये डार्क होता है, डार्क ब्राउन कलर होता है, थिक होता है, ठीक है। इन नेचर दे आर थिक इन नेचर, दे आर डार्क ब्राउन इन कलर, एंड दे कवर द कॉकरोच बॉडी। हाफ ऑफ द बॉडी इज कवर्ड बाय वन विंग एंड अनदर हाफ इज कवर्ड बाय अनदर विंग। तो पूरा जो विंग है, दो विंग लेफ्ट एंड राइट पे पूरे बॉडी को कवर करता है when the animal is at rest, ठीक है। तो ये कवर का इसका मेन फंक्शन क्या है, कवर करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये इसका मेन काम है। So the wing arise from the mesothoracic junction is a large wing, covers the complete body of the animal, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, it is also it is known as anterior or mesothoracic wing। इसका क्या नाम है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर और मीजोथोरैसिक विंग, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है इलाइट्रा और टैगनीना। क्या नाम है, इलाइट्रा भी कह सकते हैं, टैगनीना भी कह सकते हैं, और नॉर्मली बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर पार्ट दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एंटीरियर, और बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन मीजोथोरैसिक रीजन दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज मीजोथोरैसिक विंग्स, ठीक है, मीजोथोरैसिक विंग, ठीक है। लेफ्ट साइड में एक होगा, राइट साइड में एक होगा, ठीक है। काम क्या है, दिस एंटीरियर और मेसोथोरैसिक विंग आल्सो नोन एज इलाइट्रा एंड टैगमीना। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन होगा, प्लीज मेक ए स्मॉल करेक्शन, दिस इज नॉट टैगमीना, दिस इज टैगमीना, एम, ठीक है। तो यहाँ पे एम होगा, टैगमीना, ठीक है, फाइन। लेट अस कंटिन्यू। नाउ द मेसोथोरैसिक विंग इज ट्रांसपेरेंट। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ना, नॉट मेजो, मेटा, ठीक है। तो पहला हमने क्या पढ़ा, मेसोथोरैसिक जो विंग है वो जंक्शन से, प्रो और मेजो के जंक्शन से वो ओरिजिन करता है और बॉडी को पूरा कवर करके रखता है। मेन फंक्शन है उसका प्रोटेक्शन करना। दे आर थिक एंड डार्क इन कलर, दे आर थिक एंड डार्क इन कलर। नेक्स्ट है, आफ्टर दैट वी हैव द सेकंड, अंडर दिस, बिलो दिस एंटीरियर wing we have the second wing which is present, that is also known as posterior or metathoracic wing because it arises from the metathoracic region, that's why it is also known as metathoracic wing. And this metathoracic wing क्या काम है इसका, it is actually help in flying, the main function is in flying, ठीक है, उड़ने में मदद करता है। और ये होता कैसा है, these are transparent, they are not thick like the last one we have just discussed, these are transparent, okay, they are comparatively thin and they help in flying, and this is known as posterior or metathoracic wings, ठीक है। So these are the basic about the morphology of the cockroach, basic structures we have discussed. We have discussed about the head, basic structure of the head, it is having eyes, then antenna, then the thorax region, then abdomen region. Thorax have three parts, prothorax, mesothorax, metathorax.
Then each thorax have legs. These are called prothoracic legs, mesothoracic legs, and metathoracic legs. Then wings are also there, which are present, which cover the first wing, which is called elytra anterior mesothoracic or tegumena, which covers the entire body of the cockroach, provide the protection, which is dark in color and which is thick in nature. The next is a transparent wing, which is present, which arise from the metathoracic region. That's why it is also known as metathoracic wings or posterior wings, help in flying. And the 10th segment, abdominal segment, from where we can see the extension, which are also get again segmented extension, present in both male and female cockroaches, are known as anal cerci. Okay. So the same points what I have discussed, it is there on the screen right now. So let us just have a quick read, just have a quick overview and revision about the points what we have discussed. First, the triangular piece of the prothorax which is present, and after the prothorax there is a smaller piece known as mesothorax, and after the mesothorax there is a one more smaller piece is there, that is called metathorax. And behind the metathorax, the cockroaches, they have the segmented 10 segmented abdomen, it is having 10 segments, right? And the cockroaches in the 10th abdominal segment, two extended structures can be seen which are segmented again and known as anal cerci, and these structures are common in male and female both. Now the thorax have two main parts, that is the walking legs and wings. thorax में दो चीज होता है, एक होता है walking leg, दूसरा होता है wings, है ना? तो walking legs जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? thoracic segments में रहते हैं, तीनों segment में रहते हैं, तो हमने वो देखा. नेक्स्ट है according to its position the legs are named. जहां पे जिस पोजीशन में है, मतलब अगर प्रोथोरैक्स में है तो हमने उसका नाम रख दिया प्रोथोरैसिक लेग्स, मीजोथोरैक्स में है तो हमने मीजोथोरैसिक लेग्स बोल दिया, अगर मेटाथोरैक्स में है तो हमने मेटाथोरैसिक लेग बोल दिया according to the position. Now the wings are again up to from two types, दो तरह के होते हैं, मेटाथोरैसिक, दूसरा होता है मीजोथोरैसिक. तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा, पहला वाला जो फर्स्ट वाला है दिस शुड बी मीजोथोरैसिक, यहाँ पे चेक कर लेना इसको, मीजो होगा, दिस इज मीजोथोरैसिक होगा, दूसरा होगा मेटाथोरैसिक. सो ये प्लीज करेक्ट करना, फर्स्ट जो है मीजोथोरैसिक है, दूसरा है मेटाथोरैसिक, प्लीज करेक्ट इट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट द विंग्स व्हिच अराइजेस फ्रॉम द मीजोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स से जो विंग्स आता है, बनता है, ऑरिजिन होता है. ठीक है, वो हमने क्या बात किया, दैट इज एक्चुअली बड़ा होता है, इसका साइज जो बड़ा है, इसका काम क्या है, कवर्स द एनिमल बॉडी कंप्लीटली, इट इज थिक इन नेचर, इट इज हैविंग डार्क, इट इज डार्क इन कलर. काम क्या है, प्रोटेक्शन करना. इसको हम क्या नाम, इसका नाम क्या है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट एंटीरियरली, और मिजो इसको बोलते हैं एंटीरियर विंग्स, इसका दूसरा नाम है मीजोथोरैसिक विंग्स, और भी दो नाम है, इलाइट्रा भी बोल सकते हैं, टैगबीना भी बोल सकते हैं, है ना, देयर आर मेनी नेम्स. ठीक है, और हमने ये देखा कि इट इज डार्क, इट इज लिटिल बिट डार्क इन कलर, इट इज ब्राउन इन कलर, डार्क ब्राउन इन कलर, एंड इट इज लिटिल बिट थिकर which cover the body and it protect the insect from protect the insect when it is at rest. ठीक है. नेक्स्ट है मेटाथोरैसिक विंग्स which is transparent, it is also known as posterior wings. काम क्या है इसका, it help in flying, fly करने में हेल्प करता है कॉकरोचेस को, मेटाथोरैसिक विंग्स, है ना. नेक्स्ट, नाउ वी टॉक अबाउट द हेड पार्ट एंड माउथ पार्ट. ठीक है, हेड पार्ट और माउथ पार्ट के बारे में हम बात करेंगे. तो लेट्स सी हाउ मच वी कैन फिनिश टुडे. सो we'll see how much we can do. So I will go to the diagram to discuss this first, then I will come back to the points and again I will discuss the points one by one. तो सबसे पहले आपको माउथ जो पार्ट है उसको देखना होगा. तो हम ये जो माउथ पार्ट अभी देख रहे हैं ना, दिस इज फ्रॉम द फ्रंट व्यू. एक्चुअली अगर हम कॉकरोच को बिल्कुल अपने सामने रख लें और उसको अगर सीधा उसके माउथ पार्ट को अगर हम देखें तो जो व्यू आएगा वो हम देख रहे हैं. समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूं? फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं. मान लो कि ये कॉकरोच का बॉडी है स्ट्रेट लाइन, तो फिर ये हेड पार्ट है ना, तो अगर इसको अगर हम सीधा, हम अगर इसके सामने बैठ जाए, सीधा इसके स्ट्रेट, हम लोग मान लो यहां से इसको अगर सीधा स्ट्रेट देखें तो जो माउथ पार्ट हमें दिखेगा वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट. सी
द हेड इज एट द राइट एंगल टू द बॉडी, हमने वो बात किया है कि हेड जो है इनका राइट एंगल होता है, बॉडी के साथ राइट एंगल में अटैच होता है, ठीक है। एंड द माउथ इज एट द लोअर साइड, दैट इज हाइपोनेथस, माउथ होता है लोअर पार्ट की तरफ, जिसको हम बोलते हैं हाइपोनेथस, ठीक है। नाउ हेड इज मेड अप ऑफ 6 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक्सोस्केलेटन, हेड जो है वो 6 डिफरेंट पार्ट से बना होता है, हमने पहले भी बात किया है। Head is made up of different parts of the exoskeleton. Normally they have 6 different parts of the exoskeleton, chitinous exoskeleton, which join together and form the head part. ये हमने पहले भी बात किया है, लेकिन the thing is that we cannot see it properly in case of the adult stage. It can only visible in the young stage of the cockroach. ठीक है। Now the head is little triangular in shape. Head क्या होता है, थोड़ा triangular shape का होता है, थोड़ा सा। And there are 2 large compound eyes are visible. 2 हमें large compound eyes हमें मिलेंगे, ठीक है। And now each compound eye is made up of many units, and such units are actually known as ommatidium. क्या कहते हैं हम? ommatidium कहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, this is the eye, compound eye. अभी जो कंपाउंड आई अगर आप देखोगे तो यू कैन सी देयर आर मेनी स्मॉल पीसेस which actually combine together and form this compound eye, ठीक है। अभी जो स्मॉल यूनिट्स है, these are actually a type of simple eye. तो बहुत सारा सिंपल आई हो जो मिलके ये कंपाउंड आई बनता है, ठीक है। और वो जो सिंपल एक सिंगल यूनिट है सिंपल आई का, उसे हम क्या कह सकते हैं? ओमैटिडियम। क्या कह सकते हैं उसे? ओमैटिडियम, ठीक है। सो ईच ओमैटिडियम रिप्रेजेंट अ type of such a type of simple eye, so which is like a simple eye, right? The ommatidium which are just like a simple eye, right? Now in front of the compound eye there are sockets. अगर आप compound eye के सामने देखोगे तो आपको sockets मिलेंगे। So this is one socket, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, यहाँ पे मैंने बनाया है, this is another socket. तो socket आपको मिलेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, और ये socket में क्या रहते हैं? ये socket में एंटीना फिक्स होता है, ठीक है। So what we can see in front of the compound eye, there are sockets where the antenna is present. वहां पे एंटीना प्रेजेंट होता है। तो ये वाले राइट साइड वाले सॉकेट में एक एंटीना होगा, लेफ्ट साइड वाले में भी एक एंटीना होगा। तो मैंने एक एंटीना बनाया है, आप दूसरा भी बना सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरा वाला भी बना लेना, जस्ट लाइक दिस वन। जैसे आपने ये वाला बनाया है, बनाओगे वैसे लेफ्ट साइड में भी बना लेना, ठीक है। आई हैव जस्ट ओनली ड्रॉन अ सिंगल वन, ठीक है। चलिए, now each antenna is made up of 3 parts. एंटीना जो है बेसिकली 3 पार्ट से बना होता है। पहला जो बेस पार्ट है, जो बेसल पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, द बेसल पार्ट, वो थोड़ा सा आपका ब्रॉड होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड होता है, नैरो नहीं होता। आप देख सकते हो दिस इज लिटिल बिट ब्रॉडर इन शेप। और इस स्ट्रक्चर को हम इस जो ये देखो 3 पार्ट से बना होता है ना एंटीना। पहला वाला जो बेसल पार्ट है जो थोड़ा ब्रॉड होता है उसे हम कहते हैं स्केप। क्या कहते हैं उसे? स्केप कहते हैं। उसके बाद एक छोटा पार्ट होगा, आफ्टर दैट देयर इज आफ्टर द स्केप पार्ट ऑफ द एंटीना देयर इज अ लिटिल नैरोअर पार्ट। अभी थोड़ा सा ब्रॉडर पार्ट के बाद थोड़ा नैरो पार्ट मिलेगा उसके बाद, जिसे हम कहते हैं छोटा जो नैरो पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओनली दिस मच, इसे हम कहते हैं पेडिसल। क्या कहते हैं उसे? पेडिसल, ठीक है। देन आफ्टर दैट after the pedicel then there is a thin slender tapering part, ठीक है, which is present. उसके बाद देखो एक लंबा पतला सा tapering part जो with the tapering end can be seen. This is actually the antenna, or it is also we can call as a filament. This is the filament of antenna, ठीक है। समझ में आया ना? So कंपाउंड आई हमें दिख रहा है जो कि स्मॉल यूनिट से बना है, सिंपल आई की यूनिट से बना है, जिसको हम एक यूनिट को हम कह सकते हैं ओमैटिडियम। And after that, each and both just after the eyes, immediately after the eyes, there are sockets are present, and each socket there are antenna is in 2 sockets, 2 antenna is present. Antenna is having 3 parts. The basal part is broader, which is known as escape. Then there is a little bit narrower part is present, that is called pedicel, and after that there is a thin filament-like structure is present, that is called antenna. Okay. Now after that, if you see the behind the depression, 2 dot-like structures can be seen, which are simple eye. अभी ये जो डिप्रेशन हमें दिखा यहाँ पे, जो सॉकेट का जो डिप्रेशन है, बिल्कुल उसके पीछे भी हमें 2 डॉट-लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। वो क्या है 2 डॉट-लाइक स्ट्रक्चर? दिस आर नथिंग बट दिस आर अगेन टाइप ऑफ सिंपल आई, ठीक है।
अब देखो, अब मैंने पहले ही बताया था कि ये जो एक्सोस्केलेटन है, जो हेड पार्ट के जो पीसेस है एक्सोस्केलेटन से जो बना हुआ था 6 पीसेस से, वो हमें एडल्ट स्टेज में नहीं दिखेगा, लेकिन हमें वो जो यंग कॉकरोच है उसमें हमें थोड़ा सा दिखता है, ये लाइनिंग दिखता है। आप देख सकते हो, वी कैन सी अ लाइन which is inverted Y shape. Can you see this? There is a line what is a little bit inverted Y shape का लाइन हमें मिलता है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला बोन है, तो ये वाला जो पूरा बोन है, ठीक है, ये एक बोन हो गया, ये साइड वाला एक बोन हो गया, ये साइड वाला एक बोन हो गया, तो ये एक बोन, ये एक बोन, ये एक तीसरा, 3 बोन हो गया। तो जो बड़ा वाला बोन है, ठीक है, ठीक है, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट, the 6 pieces of the exoskeleton is in the head is not visible at the adult stage, but in the young cockroach the lines are visible, and these lines are visible in the form of inverted Y. inverted Y के फॉर्म में हमें दिखता है ना। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है आपका द बिगर पीस, जो बड़ा पीस अभी हमने देखा, तो ये जो वाई टाइप इन्वर्टेड वाई टाइप यहाँ पे स्ट्रक्चर है, तो हमें कितना पीस दिख रहा है यहाँ पे? एक पीस ये है, एक पीस ये है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा पीस है? ये वाला। तो सबसे बड़ा पीस है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रॉन्स। क्या कहते हैं उसे? फ्रॉन्स। ठीक है, नाउ बिलो फ्रॉन्स, फ्रॉन्स के बिल्कुल नीचे आपको दिखेगा दिखेगा यहाँ पे, जस्ट बिलो द फ्रॉन्स यू कैन सी देयर इज अ स्मॉलर पीस ऑफ द piece is also present, which is a part of the which is actually the endoskeleton piece which make the head, and that is called clypeus. ठीक है, और clypeus, ठीक है, that bone is called clypeus. Then after that there are 2 bones are present sidewise. देखो मैंने रेड कलर से यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे एक बोन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी एक बोन आपको दिख रहा होगा, दिस वन, इट शुड बी कंप्लीट। ठीक है, सो ये एक बोन है, ये एक बोन है, सो 2 बोन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, दिस वन, सॉरी या दिस वन एंड दिस वन। ये जो लैटरली जो साइड में जो आपको बोन यहाँ दिख रहे हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जेना। ठीक है, ये जो बोन है सर क्या कहते हैं? ये 2 होते हैं, दोनों ही जेना है, इस तरफ एक होगा, इस तरफ एक होगा, इसको बोलते हैं जेना। ठीक है, तो ये जो 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन है और पार्ट्स है, काइटोस्केलेटन बोन नहीं है, जो काइटोस्केलेटन जो एक्सोस्केलेटन है, जो पीसेस है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन पीसेस है, और वो जो है यहाँ पे दिख रहा है, जो लास्ट वाला हमने देखा साइड वाइज रहता है, उसे हम बोलते हैं जेना। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं, ये है 1, फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, this is Clypeus is 4th, then we have this Jena, that is 5th and 6th. तो 2 Jena होता है, तो 5th and 6th, तो 1 2 3, then Clypeus 4th, then Jena 5th, second Jena 2 होता है, तो टोटल 6। तो आप देख सकते हो कि 6 जो पार्ट्स है, काइटेनियस पीसेस है, उससे मिलके ये पूरा हेड पार्ट जो है बनता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? राइट, सो लेट अस गो बैक टू द पॉइंट्स, सो यू कैन राइट डाउन द पॉइंट्स एज वेल। सो हेड पार्ट एंड द माउथ पार्ट, सो हेड इज एट द राइट angle to the body, and the mouth is at the lower side, that is called hyponathus. The head is made up of 6 different parts of the exoskeleton, 6 different parts of exoskeleton से बनता है। The head is little triangular in shape, head जो होता है वो थोड़ा सा triangular होता है, and there are 2 large compound eyes are visible in the dorsal view. हमने देखा 2 बड़े large जो compound है वो हमें दिखता है, and each compound eye is made up of units, small units, and each unit is known as ommatidium, and which is like simple eye. ठीक है, समझ में है ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन फ्रंट ऑफ दीज कंपाउंड आई देयर आर सॉकेट्स व्हिच वेयर द एंटीना आर प्रेजेंट। ठीक है, 2 एंटीना उसी में रहता है। नाउ ईच एंटीना इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। हर एक एंटीना क्या है? 3 पार्ट से बना होता है। हमने देखा जो लोअर पार्ट होता है या बेसल पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है, उसे हमने क्या देखा? वो स्लाइटली ब्रॉडर होता है, उसको हम बोलते हैं स्केप। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हुआ है थोड़ा सा नैरो होता है, उसको बोलते हैं पेडिसल। उसके बाद एक लंबा सिलेंडर टैपरिंग पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीना और फिलामेंट, है ना? राइट, and behind the depression there are dot like structure also are present. Those dot like structures are nothing but the simple eye, that also we have discussed. Then the pieces, the 6 pieces of the exoskeleton, chitinous exoskeleton in the head is not visible at the adult stage.
but it is visible in the young cockroach as a line, in the form of line of inverted Y, right? Then we can see the other pieces also. The bigger piece हमने जो देखा, जो हमने Y line के बाद उसको हम बोलते हैं frons, and below the frons there is a small piece that is called clypeus, and the side laterally there are two more pieces are also present, that is called gena. So total हम count करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? There are 6 bones, there are not bones, there are 6 pieces of chitinous exoskeleton. ठीक है, सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? अभी हमने कहां तक पढ़ लिया? हेड जो है, कॉकरोचेस का हेड पार्ट है, उसको हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट में हम इसका माउथ पार्ट जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ।